مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں ملا آپ اس کو، وہ اندر آیا ہوا تھا، ڈوگر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ۔ شرم کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو، 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 شرم کرو، حیا کرو، میرے پاس ہے، ساڑھے پاس خان کو رہا کرو، بے شمار بے شمار، عمران تیرے بے شمار بے شمار، بے شمار بے شمار، بے شمار بے شمار، بے شمار بے شمار، ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کل اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں باہر احتجاجاً عوامی اسمبلی لگائیں گے۔ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے تمام پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی یہاں موجود ہیں، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس جعلی اور فارم 47 حکومت کو ہم نہیں مانتے، اور حالیہ دنوں میں جو ہمارے اراکین قومی اسمبلی کی نااہلیاں ہوئی ہیں ان پر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے بنا کر جو ان کو سزائیں دی گئی ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور اسی دوران علیمہ آپا کے دونوں بیٹوں کو 9 مئی کے کیسوں میں 24 مہینے کے بعد تقریباً پکڑا گیا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم خان صاحب کی پوری خاندان جو آج قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، ان کی اہلیہ بشرا بیگم، خان صاحب خود، اور ہماری پوری پارٹی قیادت جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، جس میں عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اور حسان نیازی صاحب ہیں، اور ہمارے سینکڑوں کارکنان ہیں جو آج قید و بند کی صحبتیں جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں بھگت رہے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جب تک قومی اسمبلی کا اجلاس چلے گا ہم باہر بیٹھ کر احتجاج کی شکل میں اپنی اسمبلی لگائیں گے، اور اپنا پوائنٹ آف ویو میڈیا کی زبانی عوام کو، قوم کو بتائیں گے کہ یہ 22 مہینے تقریباً ہو گئے اس حکومت کو، اور یہ اب تک جو ہے فسطائیت، ظلم، بربریت جاری ہے، اور یہ جعلی حکومت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں درخواست کروں گا اسپیسیفکلی اسد کیسر صاحب کو کہ وہ اس اسمبلی کی صدارت شروع کریں، اور اسمبلی کی صدارت شروع ہونے سے پہلے صرف 2 الفاظ کہوں گا، وہ یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، یہ دنیا کی چھٹی بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس وقت ملک میں 70% سے زیادہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس وقت 17 کروڑ عوام کی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے۔ ہمارا مینڈیٹ 180 سیٹوں کے ساتھ اس اسمبلی میں بیٹھنا تھا، پھر 91 کے ساتھ بیٹھے، آج 76 کے ساتھ ہم بیٹھے، لیکن ہمیں مجبور ہو گئے، اس بات پہ ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنی اسمبلی باہر لگائیں، کیونکہ ہمارے جو سیاسی عمرین تھے، ہمارے سیاسی عمرین کنوکٹ بھی ہوئے، نااہل بھی ہوئے، ان میں سے صرف اور صرف ان کا قصور خان صاحب کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہونے کو تھا۔ ان کے ساتھ ان کے طرف پہ دوسرے الزامات دوسرے لوگوں پہ لگے تھے، وہ جب ساتھ چھوڑ گئے تو وہ اکوٹ ہو گئے۔ عمر ایوب خان صاحب چلے گئے، شبلی فراز چلے گئے، زرتاج گل بی بی چلی گئی، رائے حسن صاحب چلے گئے، رائے حیدر صاحب چلے گئے، ہمارے دستی صاحب چلے گئے، سارے ساتھی کو ون آفٹر ادر، حامد رضا صاحب چلے گئے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس سسٹم میں جب رہیں تو ہماری بات کو سنا جائے، ہماری آواز، ہم عوام کو آواز اٹھائے اس پارلیمان میں تو پارلیمان مضبوط ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی نہ صرف وہ آواز دبتی گئی بلکہ ایون ہمیں کوئی سپیس بھی نہیں ملی۔ یہاں سپریم کورٹ تک واک کرتے ہیں، فقط اتنی استدعا کرتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق ہمارے کیسز لگاؤ ہیئرنگ کے لیے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سابق وزیر اعظم کی کیسز ہے، ہم کہتے ہیں ایک عام شہری کی طور پر بھی اس کا حق ہے، وہ واک نہیں کی جانے دیا جا رہا۔
वो केस की सुनवाई नहीं हो रही। फैमिली को सारा आपने देखा, खान के भांजों को भी रोका गया, उनको भी जेलों में डाला गया, 2-2 साल बाद उनको भी जेलों में डाला गया। दिस इज़ वे टू मच। इसलिए हम मजबूर हो गए कि अपनी असम्बली आवाम के लिए यहाँ हम बाहर लगाएंगे। अब सदारत करेंगे, सदारत लाइव सोर्स अंदर आन है सदारत उसके लिए स्पीच करेंगे। पहली असम्बली की सदारत असद कैसर साहब करेंगे, हमारे कोई साथी फ्लड पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हमने आज असम्बली लगाई है, उधर असम्बली की इसलिए वो नहीं है कि हमारी आवाज़ जो है ना पब्लिक में जाती भी नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ आए हैं। तो इस वक्त जो है ना हम हर सूबे से जो है ना कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ लोग बोले 5-5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने अपने इलाके की मसाइल पे बात करें। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए, जो इस वक्त हमारा यहाँ असम्बली एहतजाज 1 पॉइंट एजेंडा में है कि ये असम्बली जो इस वक्त निज़ाम चला रहा है, ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, ये अनलॉफुल है, जिसमें गैर मुंतखब लोग इधर हाउस में बैठे हैं, और जो इस वक्त तारिक इंसाफ के साथ जुर्म और जबर हो रहा है, इसके खिलाफ सबसे पहले मैं पंजाब से जो है ये असेंबली शुरू हो गई है। असम्बली शुरू है हमारी, असम्बली शुरू है हमारी। बादम जतोई साहब लेट आए हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके सिलसिले में मेरी इस्तदा है कि हमें मैक्सिमम जितनी वसाइल हुकूमत के पास हैं वहाँ पे दिए जाएं, क्योंकि जहाँ 2 दरिया इकट्ठे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पानी रुकावट पैदा होता है और उसकी वजह से उसकी राइज ज़्यादा होती है। और हेड पाइंडा स्पेशली जो है ना, वहाँ के ऊपर जो पानी इकट्ठा हो रहा है और उससे जो राइज पैदा हो रही है, वहाँ पे नीचे सब आबादियाँ जो है ना वो पानी के नीचे जा रही है। लोग बंदों पे बैठे हैं और वहाँ पे टेंट्स और इन चीज़ों की ज़रूरत है। मेहरबानी। गुंडी साहब आए, एक बाल अफरीदी को इसके बाद आप गुंडी साहब आए, 5 मिनट ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन साहब का और स्पीकर साहब को, तमाम मेंबरान को असम्बली का मशकूर हूँ, और साथ हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कि उन्होंने अवामी असम्बली लगाई। और मैं बासियत मेंबर कौमी असम्बली फाटा के आपसे मुखातिब हूँ, और मेरे हलके और मेरे एक्स फाटा में जो क्लाउड बरस्ट में जो नुकसानात हुए हैं, बाजावड़ में बहुत सारे घर गिर गए हैं या बहुत सारे अमवात हुए हैं, खैबर एजेंसी में वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, इस तरह उरकज़ई, वज़ीरिस्तान, कुरम यहाँ पे नुकसानात हुए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन साहब का, उनकी हुकूमत का, जिन्होंने वहाँ पे फौरी तौर पे उन लोगों को सहूलतें दी, वहाँ पे तमाम इदारे एक्टिव करके वहाँ पे पहुँचाए, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी उनको वो सहूलतें प्रोवाइड की। और उनके साथ साथ मैं तमाम मेंबरान कौमी असम्बली का भी मशकूर हूँ, जहाँ पे उन्होंने विज़िट की और उन लोगों की जो वहाँ पे नुकसानात दादरसी की। लिहाजा आज ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे जो जुल्म व जबर हो रहा है, कौमी असम्बली में जो सिविल मार्शल नाफिज है, और वहाँ पे न तो तकरीर को वो हमें देते हैं और न वहाँ पे किसी को तकरीर करने देते हैं। लिहाजा ये जुल्म में जबर है, पस्तायत ज़िले से शुरू है कौमी असम्बली तक, और यहाँ पे इंसाफ होनी चाहिए, आईन कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जितना भी जोर लगाया, उन्होंने इमरान खान को पीछे नहीं धकेला, इमरान खान की वोट बैंक को बढ़ाया है। लिहाजा इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म है। अगर इस मुल्क को बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को रिहा करें। मस्ती खैर साहब। जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद। ये आपको जैसे हमारे दोस्तों ने आपको बताया कि यहाँ हम ओपन असम्बली जो है वो लगा रहे हैं, अवामी असम्बली, इनके पसे पर्दा मुहर्रिकात हैं। आपके मीडिया के भाइयों को पता है, पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी से ज़ायद वोट दिए, और हम 180 सीट जीत के आए। हमारा मैंडेट छीना गया, हमारे पार्टी का निशान छीना गया, और हम मुख्तलिफ निशानों पर लड़ के यहाँ आए। लाख 1.5 लाख की हमारी लीड थी, लेकिन हमारे अवामी मैंडेट को नहीं माना गया। उसके बाद आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्पेशल सीट का अहकामात थे, साल तक उन्होंने उसके अहकामात को नहीं माना, और हमें गोलियां मारी गई। हमारे आइनी, जमहूरी और सियासी
जो हमारी जद्दोजहद है उसका रास्ता रोका गया, हत्ता कि हमें असम्बली के फ्लोर पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। और बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो पार्लिमान जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदों की, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ कि वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान करते हैं, लेकिन यहाँ से भी भोंडे अंदाज में 10 हमारे MNAs को गिरफ्तार किया गया। वो आपके सामने है। हम फिर पुरअमन एहतजाज के लिए जाना चाहते थे, खान साहब के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना चाहते थे, हमारे गेट के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो ये तमाम तर हालात की बुनियाद पे हमें क्यों मजबूर किया गया, हमारी ज़ुबान को रोका गया, जो आईने पाकिस्तान के तहत हमें इख्तियारात हैं बोलने के, तकरीर करने के, इज्तिमा करने के, तहरीर करने के, जब वो बंद कर दिए गए, मीडिया का गला घोंटा गया। आप देख सकते हैं कि 26th अमेंडमेंट के ज़रिए जो है वो अदलिया पे जो है उसको मुक़य्यद कर दिया गया। हमें मजबूर इन्होंने किया, रस्ते इन्होंने हमारे बंद कर दिए, हमारा इन्होंने अब सांस तक जो है वो लेना इन्होंने बंद किए। इस बुनियाद पे खान साहब के अहकामात पे हमने जो है वो स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन किए हैं और अपनी मेंबरशिप से रिज़ाइन किए हैं, इसलिए कि अगर ये हमें अपना हक अदा नहीं करने देंगे। और आज हम यहाँ जो मैं समझता हूँ कि ये भी एक एक्सट्रीम लेवल है कि हम जो है धूप में, शदीद तरीन धूप में आपके सामने खड़े हैं और हम आवाम से बात कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम कोई चीज़ नहीं मांगते, हम ये चाहते हैं कि खुदारा इस मुल्क को आईन कानून के मुताबिक चलाया जाए, जो 1973 का आइन है, जिसमें हमें तहरीर की, तकरीर की आज़ादी है। और हमारा लीडर इमरान खान जेल में पड़ा है, आप उनके केसेस नहीं लगाते, तो उनके लिए मेरी ये भी गुजारिश होगी कि मेहरबानी करें, खान को रिहा करें, और जो हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो तमाम हमारे लीडर्स को जो है वो उन्होंने नाहक जो है वो डिस्क्वालीफाई किया, उनको बहाल किया जाए। और मैं चाहता हूँ, हम तमाम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जो है आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। जब बड़ा दिल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हालात खराब से खराब तर होते जाएंगे। थैंक यू। और फ्लड मैं फ्लड की बात कर रहा हूँ, जनाब देखें कितना अफसोस का मसला है। मैं एक बड़ी भाईजान फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ कि 78 ईयर्स इस मुल्क को बने हुए हो गए हैं। हर साल 10 साल के बाद फ्लड आता है, लेकिन ये जो माजी की हुकूमतें हैं ये पूरी तौर पे नाकाम होगी। हमारा ये ईमान है कि ये जो आफत आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके फ्लड आ रहे हैं, ये आपके जो जल्जले आ रहे हैं, ये तो हमारे अमाल का गुनाह है। ये जुल्म और जबर के खिलाफ एक में अल्लाह सुब्हाना व तआला भी एक एहतजाज का रिकॉर्ड करवा रहा है। तो इस ये जो हम पंजाब के तमाम जहाँ पे नुकसानात हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, मैं सुन रहा था अभी मीडिया पे कि जो है बलूचिस्तान में ये रेला जा रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और हम जो है उनके साथ पूरा बर्फ शामिल है। लेकिन कितना अफसोस का मकाम है कि ऐसे लोग जो वहाँ इमदाद करना चाहते हैं, पंजाब हुकूमत की फस्ताइयत देखें जी, उन्होंने टेंट उखेड़ दिए हैं जी, मरियम की तस्वीर उन्होंने टेंट उखेड़ दिए हैं। उन्होंने ये कहा है जनाब कि नहीं जी, जहाँ पे तस्वीर होगी और हमारी इजाजत होगी तो आप इमदाद करेंगे। यार खुदा का नाम, तस्वीर किस, ये हमारा मुल्क जो है वो जेर अताब है, फ्लड आए हुए हैं, तूफान आए हुए हैं, लोगों की जो जाने नुकसान हुए, 800 बंदा जो है वो वहाँ फौत हो गया है बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो नहीं कहा कि आप वहाँ ना आए, जो मर्जी है इमदाद करना चाहे। तो ये इस पर भी सियासत चमकार है, मुझे अफसोस का मकाम है। बहुत अमीर सुल्तान साहब अपना हल्का बताया करें। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि आज इस इमारत के होते हुए जो कि जमहूरियत की अलमबरदार है, हमें आज असम्बली बाहर लगानी पड़ रही है, क्योंकि ना हमें टाइम दिया जाता है, ना हमारी आवाज़ बुलंद की जाती है, ना हमें सुना जाता है। पार्लियामेंट के होते हुए आज हम मजबूरन बाहर आए हैं, क्योंकि अंदर PTI के अरकान को ना वक्त दिया जा रहा है, ना उनकी आवाज़ बुलंद, वो भी मुल्क के इस मुश्किल घड़ी में, जब पूरा मुल्क एक सैलाबी आफत का शिकार है, जब हमें इकट्ठा होकर इस मुल्क की खिदमत करनी थी, गरीब आवाम की खिदमत करनी थी। आज तमाम वो लोग जिनके इलाकों में सैलाब आया हुआ है, वो अपनी मसरूफियात और गरीब लोगों का दुख छोड़कर यहाँ आए हैं ताकि अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, हुकूमत को बता सकें वहाँ कितनी बड़ी आफतें आई हुई हैं, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमें अंदर बोला नहीं देना जा रहा। क्या जंग में इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है, और जंग का कसूर खाली ये था कि जंग ने PTI को क्लीन स्वीप करवाई थी। आज चौथा दिन है सैलाबी रेले के वहाँ गुजरने का, किसी भी PTI के अरकान को, जितने MNA हैं, जितने MPs हैं, आज तक इंतज़ामिया ने राब्ता नहीं किया। जो हमने वहाँ अपने तौर पर कैंप लगवाए हैं वो उखाड़ दिए गए हैं। सरकारी कैंप अभी तक इसलिए नहीं लग सके कि उनके ऊपर CM साहिबा की तस्वीर नहीं अवेजा हुई अभी तक।
आटा इसलिए तकसीम नहीं हो सका कि उनके बोरियों के ऊपर अभी तक सीएम साहिबा की तस्वीर आवेज़ा नहीं हो सकी। जो लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर जा रहे हैं उनसे ज़बरदस्ती बैनर उठवाए जा रहे हैं कि जी मरियम की तस्वीर उठा के खड़े हो। क्या इस वक्त मुल्क को इश्तिहार की ज़रूरत है या लोगों की ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखने की ज़रूरत है? ज़िम्मेदार पहले ही तबाह कर चुकी है ये हुकूमत, और अब इस सैलाबी सूरत हाल के बाद तो ज़िम्मेदार की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। हम मुश्तरका तौर पर इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ज़राअत के लिए, ज़मींदार के लिए फ़ौरी तौर पर बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया जाए, उनके अबयाने मालियाने, उनके बिजली के बिल, ट्यूबवेल के बिल माफ़ किए जाएँ, जिन इलाकों में आफत आई है वहाँ उन पर ज़राई टैक्स माफ़ किया जाए, और फ़ौरी तौर पर हम ये गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि वो पाकिस्तानी है, वो PTI के अरकान नहीं है, वो इस पाकिस्तान कौम के, इस मुल्क के लोग हैं। ज़िम्मेदार मेहनत कश इंसान है जो मेहनत करके इस पूरे मुल्क का पेट पालता है, और आज हमें सिर्फ अपनी इश्तिहार की पड़ी हुई है। खुदारा किसान के लिए कुछ करें, इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ करें, छोड़ दें इस चीज़ को कि हम PTI के हैं, आप नून लीग के हैं, आप जिस मर्जी पार्टी से हों। 9 अरकान मेंबर सूबाई असम्बली मेंबर नेशनल असम्बली जंग के हैं, एक इंसान से किसी इंतज़ामिया के रुकन ने रब्ता नहीं किया, हम उन्हें कॉलें करते रहे, किसी का जवाब नहीं दिया गया। क्या इस चीज़ पे सियासत बनती है? ये वक्त इंसान की खिदमत करने का है, गरीब की खिदमत करने का है, ज़िम्मेदार की खिदमत करने का है, और आप इस वक्त भी ये सियासत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम व दायम रखे, अल्लाह ताला इस मुल्क की जमहूरियत मजबूत करे। ये अवान मजबूत होगा तो अवाम और मुल्क मजबूत होगा, ये अवान मजबूत होगा तो जो नाहक कैदी अंदर बैठे हैं वो जल्दी बाहर आएंगे। इमरान खान साहब की 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, उनकी अपीलों की जो है वो तारीख नहीं लगती। हमारे 10 अरकान को गैर मुनासिब तरीके से जिस तरह से निकाला गया, हम उसकी भी पुरज़ोर एहतजाज करते हैं, और हम यहाँ खड़े होकर अवाम के लिए, अपने ज़िले के अवाम के लिए, पूरे मुल्क के अवाम के लिए जो सैलाबी आफत का शिकार हैं उनके लिए हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। कुंडी हाफिजाबाद में भी सलाह साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावर खान कुंडी हल्का NF